Good evening, everyone, and welcome to the world of the International Fab Talks. A happy Mahashivratri to everyone. May we all live in peace, happiness, and harmony. And let there be peace in the world, not only in our country, India, but across the world. Let the Almighty above bless us in the right way. Dear friends, today it's a special day, and we've invited a special guest connected with great part and creativity. He's been contributing his time and energy to training young minds and people who are interested in this beautiful art. It's called as the dance arena that we are going to talk about today. So join us, friends, to welcome our celebrity guest, none other than Shri Dinesh Gupta. He's here with us, joining us all the way from Mandi, Himachal Pradesh, India. We'll get to know more about his journey and what he has to share with us with regard to the classical dances of India, focusing mainly on Kathak. Welcome, sir, and thank you so much for being here with us. नमस्कार मैम नमस्कार नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद. आगे जाके आपकी प्रोफाइल पढ़ के हम सेशन स्टार्ट करेंगे. जी जरूर जरूर. Dinesh Gupta sir, who's here with us, he's going to share his journey and enable us to understand the importance of dance, emotional well-being, and spiritual growth as well. So friends, I go ahead and share sir's profile to understand as to who he is and what he has to share. Give me a moment, friends. So this is something very nice to share with you. Dinesh Gupta sir is the first male postgraduate Kathak dancer. It sounds so nice. He's also been an award winner of the Himalayan Cultural Heritage Award. So that's great. He's won another award called as the Maharaj Sri Chandra Prakash Award. And he's working in a school training young children and enabling them to develop a passion for dance. I wish I had somebody who had pushed me further into the field to understand the importance of dance that it would have in our lives. Because I think dancing is something like liberating you in a way. So I think dance is something very pure, very divine. We'll get to know more about it. I should not be excited too much because we're going to get all the information from our celebrity guest, none other than Shri Dinesh Gupta. Sir, thank you so much for being here with us. The first thing I'd love to ask you is, like, I didn't have a dance teacher when I was young, but I always wanted to have. The school that I was studying did not have a dance master or dance teacher. Okay. Only a selected few were, taken for annual day functions and all of that. So when I meet people like you who have given their entire life focusing on bringing about change in the minds of the young people with regard to traditional dancing and westernized dance. So we're going to focus on this very much. What importance does traditional dance of India have in the hearts and minds of all of us around? So let me put that right. So how would you like to define yourself today? Who is the real Dinesh Gupta ji? Over to you. Okay. Thank you so much for lovely first question. If I want to, to define myself, I am first male postgraduate Kathak dancer of Himachal Pradesh. And for me, जैसे कि आपने कहा कि हम लोग भारत में रहते हैं, वी आर लिविंग इन इंडिया. भारत का मतलब ये मतलब भाव, र मतलब राग, त मतलब ताल. भारत में राग, लय, ताल, सुर हर एक जितने भी जीव है उनमें है ना. और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो इस पृथ्वी पे नृत्य नहीं करता, बिकॉज डांस इज अ इंटरनल फीलिंग. और अभी आप बात कर रहे हैं मुझसे, जो पोस्चर, जो मुद्राएं आप हस्त मुद्राएं यूज कर रहे हैं, वो बेसिकली डांस ही है ना. और जैसे कि आपने बताया कि आपकी जो जर्नी थी स्टूडेंट लाइफ की, कि आप भी चाहते थे कुछ वो करें, सीखें या कुछ वो नया करें. मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम लोग, देखो, नृत्य अंगों की सुंदर भाषा है. और विद्वान कहते हैं कि जो मन से, हाव से पैदा भाव होता है. और जब भी आप कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे वो फॉरेन में है चाहे भारतवर्ष में है, जब भी कोई म्यूजिक लगता है वो रिथमेटिकली कुछ ना कुछ मूव नहीं करता है. इट्स अनदर पार्ट कि हम लोग क्लासिकल फॉर्म में है या वेस्टर्न में है कुछ है, पर जो नाच है वो हरेक के शरीर में रचा बसा है, लय ताल. जी. एक्सलेंट सर, आपने ये इतनी अच्छी तरीके से ये बात बताई हमको भारत के बारे में. भाव, जी. राग और ताल. राग और ताल. जी Wow, जी जी. wonderful. First time I'm hearing this. That's really very nice. Very interesting. ओके. Excellent. सर, अभी हम ये जानना चाहेंगे, फिलहाल आप किस डांस फॉर्म में आप माहिर हैं और किस डांस फॉर्म में आप
अपना एक्सपर्टीज सभी को सिखा रहे हैं, जो एक्सपर्टीज आप में है, यू हैव, ये हुनर आपने सीखा है, व्हाट इज द क्लासिकल डांस फॉर्म दैट यू आर फोकसिंग ऑन, बिकॉज देयर आर मेनी क्लासिकल डांसेस इन इंडिया, व्हिच इज द फॉर्म दैट यू Yeah. आर फोकसिंग ऑन? ओवर टू यू सर। Okay. My style of dance is Kathak. Kathak is a basically Northern Indian classical dance form. और कथक का जो उत्पत्ति है वो मंदिर काल में हुई है। हम लोग कथक को 3 भागों में विभाजित करते हैं, टेम्पल पीरियड, मुगल पीरियड और मॉडर्न टाइम। जो टेम्पल पीरियड था, जो मंदिरों का काल था, वहां से उत्पत्ति हुई है और कहा जाता है कथा कहे सो कथक कहावे। बेसिकली इट्स अ स्टोरी टेलिंग डांस। और जब वो पुराने जमाने में कथा बांटते थे लोग मंदिरों में बैठ के, उनको डिफाइन करना होता है डांस के अकॉर्डिंग। जैसे भी एक समय में श्री राजा हुआ करते थे दशरथ, ऐसे मुकुट बना दिया और उनको लगा कोई एंटरटेनमेंट के लिए कि तिकदा दिख दिख थे, तिकदा दिख दिख थे, तिकदा दिख दिख थे, ऐसे वो एंटरटेन करते थे हल्का फुल्का। जब हमारा भारत मुगलों के पास गया, उस समय क्या हुआ कि जितने भी मंदिर थे उन्होंने तोड़ दिए थे, इतिहास गवाह है। वो जो नर्तक और नर्तकियां थी, वो उनके राजाश्रय में चले गए। वहां से जो है घराने पैदा हो गया हमारे यहाँ। जैसे जो डांसर्स थे वो लखनऊ में बस गए, नवाब वाजिद अली शाह जी के समय में। वो क्या बन गए, वो उनका घराना बन गया, उनका जो स्टाइल था वो उनके अकॉर्डिंग बन गया, कि उनको नजाकत पसंद थी। उनको था कि उनके सामने जो आए वो आदाब करते हुए आए। अगर वो जमाना वैसा था कि जैसे कोठों का नाच था या उनपे महफिलों का नाच था, तो उनको वो अदायगी चाहिए थी। जो लोग जयपुर में बसे, वहां वीरता थी, वहां सुरमे बहुत ज्यादा थे, तो वो तेजी बहुत लाइक करते थे। ऐसे यहाँ घरानों का हमारे प्रचलन से है, जैसे लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना। और जब भारत स्वतंत्र हो गया, तत्पश्चात जो क्या है, हमारे इंडिया में एजुकेशन पॉलिसी में जो है इसको एज अ सब्जेक्ट अडॉप्ट किया। और यही कारण है कि आज बहुत से स्कूल्स में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में डांस जो है सब्जेक्ट है। वो अलग अलग टाइप के नृत्य की जो विभाग है वो रहते हैं। जैसे कहीं कथक है, कथकली है, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, उड़ीसी, मोहिनीअट्टम। अब मयूरभंज छऊ और क्षत्रिय, वो भी शास्त्रीय नृत्य कैटेगरी में आता है। यू शेयर दैट विद अस, दैट्स एक्सीलेंट। अभी हम ये जानना चाहेंगे, इस डांस फॉर्म को कथक नाम क्यों दिया गया? इफ यू कैन शेयर दैट विद अस। या श्योर। देखिए, वास्तविकता ये है कि जब रामायण काल में लव और कुश का एक वर्णन आता है, कि उनको जो वाल्मीकि जी के यहाँ रखा गया था, जब उनको पता चला है कि अश्वमेध यज्ञ हो रहा है अयोध्या में, तो वो लव और कुश जो गाते हैं, बहुत से लोग सुने भी हैं। कुशी लव, उनके जो जितने प्रचारक होते हैं ना, उनको कुशी लव कहा जाता है, कि हम कथा सुनाते श्री रामचंद्र भगवान की। जब तक राम जी को पता नहीं था, जो उनका अनुसरण किया जिन लोगों ने, वो कुशीलव कहलाए। वही भाट, नाट, नट, ये लोग जो थे वो जुड़ते गए, उसी को अनुसरण। बेसिकली मैंने कहा कथा कहे सो कथक कहावे। बेसिकली कथक का जो मतलब डिफाइन कर सकते हैं हम लोग संस्कृत में, वही यही है। और कथक का जो अब जो आजकल का दौर है, क्योंकि पहले कथा बाजते थे, फिर वो मुगलों के दौर में श्रृंगारिकता बहुत अधिक आई। अब जो है उसके पर्टिकुलर टर्म्स हैं, क्योंकि जब एजुकेशन आती है वहां पे, जहाँ पे जुड़ जाती है प्रॉपरली। पहले जमाने में क्या था कि आपको मौखिक रूप से ज्यादा सिखाया जाता था, कि आप, मेरे गुरुजी ने उनको सिखा दिया, उनके आगे 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 जितना थोड़ा बहुत याद रह गया रह गया, अन्यथा वो जिसको सिखाना चाहते थे उनको सिखाते थे। अब क्योंकि एजुकेशन है, प्रॉपर सिलेबस है, तो आपको हर एक चीज डिफाइन की हुई है। तो कथक के अलग अलग जो एलिमेंट्स कह सकते हैं हम लोग, जैसे उठान है, वंदना है, थाट है, तोड़े टुकड़े हैं, परण है, प्रिमलू है, ये सब चीज एलिमेंट्स हैं उसके। तो वो सब हम लोग सिखाते हैं, बिकॉज आई एम वर्किंग इन डीएवी पब्लिक स्कूल सुंदरनगर, और यहाँ पे सब्जेक्ट है डांस का। तो हम लोग उन बच्चों को प्रैक्टिकली भी, थ्योरेटिकली भी, वो सब चीजें सिखाते हैं। हाँ, उसमें एक वंचित रह जाता है, जैसे हम लोग गुरुओं से सीखे हुए हैं। पंडित बिरजू महाराज जी के जो भांजे मुन्ना शुक्ला जी हैं, कथक केंद्र दिल्ली में थे, तो वहां से मैंने अपनी शिक्षा ग्रहण की है। उस समय क्या था कि जो वो स्टाइल सिखाते, वो लखनऊ घराना स्टाइल ही सिखाते थे। हमारे यहाँ वो जो गुरु शिष्य परंपरा का दौर है ना, वो बहुत स्ट्रांगली है। जितने क्लासिकल म्यूजिक, डांस है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, तो हम लोग उस तरीके से सीखे हैं। पर एकेडमिक्स को भी हमें नहीं छोड़ा, क्योंकि हम लोग जो मॉडर्निटी में हैं, उसमें उन चीजों को भी अवॉइड नहीं कर सकते आप। कि बहुत ज्यादा सरवाइव करना, ये कह लीजिए कि आप एक ही चीज को आप पनप के पकड़ के रखेंगे,
तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपको एक ही चीज में मतलब रिस्क होता है ना, जैसे पेरेंट्स को होता है कि कहीं एक ही चीज को आप लेके चलो, कहीं रिस्क ना हो जाए। तो एकेडमिकली भी जैसे मैंने एमए किया, तो मुझे लिखने का भी शौक है, मैंने 2 किताबें भी लिखी हुई हैं। तो फिर वो दौर चलता गया, फिर स्कूल में जॉब कर रहे हैं, और एकेडमी भी चला रहा हूँ मैं, कला क्षेत्र युवा मंडल करके। जी। You have to put it right. What is your academy offering to the people of India and abroad? Okay. My academy name is Kala Kshetra Yuva Mandal. Basically, it's a classical dance form, Kathak Folks Academy. और हम लोगों ने प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ है, वहां से उसको एफिलिएटेड किया हुआ है। एक विशारद 5 इयर्स कोर्स होता है, उसको भी हम लोग करवाते हैं। एंड में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही सिखाते हैं हम लोग। और एज ग्रुप में हमारे पास 3+ बच्चे आ जाते हैं, और मेरे से उम्र से बड़े भी लेडीज अप्रोक्सीमेटली वो लोग सीखते हैं जिनको पैशन है, जिनका आपकी तरह जैसे आप कह रहे हैं कि शौक था उस जमाने में, और कहीं ना कहीं वो दब के रह जाता है। जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर आपको लगता है कि नहीं, उस शौक को फिर से पूरा किया जाए। तो ऐसे लोग सीख रहे हैं, और 150 के आसपास हर वर्ष जो है बच्चे विशारद का कोर्स करते हैं यहाँ से एकेडमी से। जी, ओवर टू यू मैम। That's really nice. Very nice, very interesting, sir. अभी हम ये जानना चाहेंगे आपके बारे में। आप लेखक भी हैं, आपने किताबें लिखे हैं, तो किन जी, विषयों पर लिखे हैं आप? क्या वो डांस के ऊपर ही था या कोई और विषय था? और ये किताबों के नाम क्या? इफ यू कैन शेयर दैट विद मी। या आई हैव रिटन 2 बुक्स, मेरे पास है ही पड़ी हुई यहाँ पे। कथक शब्दकोश एंड कथक सोपान। बेसिकली क्या हुआ, जब हम लोग, मैं भी एमए कर रहा था, कथक केंद्र में था, तो मुझे ऐसा लगता था कि हर एक सब्जेक्ट का अपनी डिक्शनरी है। चाहे हिंदी है, लैंग्वेज, आई मीन टू से लैंग्वेज की अपनी डिक्शनरी है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, इवन तक उर्दू की भी है। पर जो कथक की जो डिक्शनरी थी वो कहीं पे मेरे को दिखती नहीं थी। मुझे लगा जो हम लोगों ने फेस किया है वो आने वाली जनरेशन ना फेस करे। इसीलिए मैंने पहली जो बुक लिखी वो कथक शब्दकोश लिखी, और बेसिकली मैंने हिंदी में लिखा उसको। और जो अल्फाबेटिकली जैसे इसका रहता है वर्णमाला का, अ आ इ ई क ख ग घ, वैसे ही उनके शब्द को मैंने पिरोया है। और जो कथक सोपान लिखी, वो कथक सोपान ऐसी एक बुक है जिसमें, बिकॉज मैं +2 क्लासेस लेता हूँ यहाँ पे स्कूल में, डीएवी स्कूल सुंदरनगर में, तो उन बच्चों को भी प्रॉपर कोई एक बुक नहीं मिल पा रही थी कि जिससे आपको सिलेबस जो है वो प्रॉपरली मिल जाए। और जो जैसे नेट का भी है, मैं यूजीसी के भी प्रोग्राम्स करता हूँ, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन, तो वहां पे आप जाएं तो वो पर्टिकुलर अलग अलग विधाओं के लिए हैं। जो कथक का जो +2 का लेवल है उस पे नहीं है, वो कॉलेज लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल के लिए था। फिर मुझे लगा कि कथक सोपान, जिसमें मैंने पहले उसका कहाँ से इतिहास है, कितने घराने हैं, और जो प्रसिद्ध नर्तक हैं वो कौन कौन से हैं, रस क्या होते हैं, टेक्निकल जो टर्म्स होती है, टुकड़े तोड़े तिहाइयां, ये सब उसमें मैंने लिखे हैं। जी, ओवर टू यू मैम। वेरी इंटरेस्टिंग सर, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अभी हम ये जानना चाहेंगे, आपको कथक में कब रुचि आने लगी? क्या आप बचपन से ही सीखने लगे, या आपके घर परिवार में कोई ऐसे थे जो इस आर्ट फॉर्म को आगे ले जा रहे थे? कहाँ से सीखा आपने? जी, बेसिकली जो मैं हूँ बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और हमारे जमाने में मतलब नाच को, स्पेशली नाच को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मानते थे। म्यूजिक फिर भी डाइजेस्ट हो जाता है ना, कि आप म्यूजिक सीख रहे हैं, गा बजा रहे हैं कुछ। तो और पर्टिकुलर जो मैं गुप्ता फैमिली से हूँ, तो वहां पे तो थोड़ा और मतलब माहौल रहता है बिजनेस का, और ये इन सब चीजों से बहुत दूर दूर का नाता नहीं रहता। पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया। जिस मंडी डिस्ट्रिक्ट में मैं पढ़ा हुआ हूँ, कागल गांव में, तो वहां पे ऐसा सब्जेक्ट तो नहीं था, और वहां पे कोई साधन भी नहीं थे। पर मैंने +2 में एडिशनल सब्जेक्ट ले लिया। मुझे मालूम पड़ा कि उमा शर्मा जी यहाँ पे हैं मंडी में, वो नृत्य सिखाते हैं। उनसे मैंने प्रैक्टिकल सीखा। फिर जब मेरा प्रैक्टिकल जो था वो शिमला में आरकेएमडी कॉलेज में गुरु श्रीमती इला पांडे जी हैं, वो प्रैक्टिकल लेने आई मेरी। तो वहां मुझे एग्जैक्टली पता चला कि कथक क्या होता है, और कैसे इसमें आप एकेडमिकली ग्रेजुएशन भी कर सकते हो, साथ में विशारद एक कोर्स होता है, भातखंडे से मैंने किया है, वो भी किया। तो उसके बाद मैं शिमला में चला गया, संजौली कॉलेज से ग्रेजुएशन की, और पार्ट टाइम जो इवनिंग में था वो मैंने श्रीमती इला पांडे जी से नृत्य की शिक्षा ली। तत्पश्चात जब मुझे लगा कि इससे आगे भी और एडवांस कोर्सेज है, तो कथक केंद्र है इंडिया में, 2-3 कथक केंद्र है, लखनऊ में है, जयपुर में है, और दिल्ली में है। तो वो संगीत नाटक एकेडमी द्वारा बनाई गई हैं कथक केंद्र।
वहां पे फिर मुझे सौभाग्य मिला गुरु श्री मुन्ना शुक्ला जी से लखनऊ घराने की बारीकियां सीखने का। वहीं पे हम लोगों ने उमा शर्मा जी, पद्म विभूषण बिरजू महाराज जी, अपने जयकिशन महाराज जी, इन लोगों के बड़े बड़ी हस्तियों के साथ काम करने का मौका मिला, इनको देखने का मौका मिला, कैसे नाच को जिया जा सकता है। हम लोगों ने जब कथक महोत्सव होता था, सितारा देवी जी को, इनको नाचते हुए देखा हुआ है। और बड़े बड़े जो दिग्गज लोग हैं कथक की दुनिया में, उन लोगों को देखा, और बस उसी इंस्पिरेशन से आगे भी बच्चों को सिखा रहे हैं कि आप जरूर इस विधा को सीखें। और मेरा जो मानना है कि देखिए, डांसर बनना एक अलग चीज है, प्रोफेशनली आप इसको अडॉप्ट करना वो अलग चीज है, पर कला रसिक होना ना, वो हमारे दायित्व है। कला रसिक जब तक नहीं होंगे ना, वही बात है ना कि आप यूनिवर्सिटी खोल लीजिए, अगर यूनिवर्सिटी से पहले आप कॉलेज और स्कूल नहीं खोलेंगे तो यूनिवर्सिटी तक तो पहुंचेगा ही कौन। आप नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं, परंतु जब तक उसको सीख समझने वाला ही नहीं होगा, कोई कला रसिक ही नहीं होगा, तो औचित्य ही नहीं बनता ना उस चीज का। वो तो फिर कहीं पे भी कुछ भी करे तो उसको कुछ भी नहीं लगेगा वो। जहाँ कला रसिक होंगे, वो डेफिनेटली वो एलिमेंट्स सब्जेक्ट्स होते हैं। मैं अगर नृत्य सिखा रहा हूँ या सीख रहा हूँ, तो मेरे साथ गाना भी जुड़ता है, बजाना भी जुड़ता है, थोड़ी बहुत नॉलेज उन चीजों की भी होती है। मतलब ये चीजें आपस में गुंथी हुई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन तरीकों से जो हम लोगों ने सीखा, उन चीजों को हम आगे जनरेशन को भी सिखाएं। ओवर टू यू मैम। यस सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट, थैंक यू वेरी मच। अभी हम ये जानना चाहेंगे, नृत्य और डांस हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारे इमोशंस पर किस तरह का प्रभाव हो सकता है? व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डांस इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन और इन द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग? हमने जी सुना, हमने ये भी सुना है टुडे एनिमल्स भी, लिसनिंग टू म्यूजिक, इवन देयर बॉडी आल्सो गिव्स अ सर्टेन मूव, ग्रेसफुल मूव्स वो भी करते हैं एनिमल्स, बर्ड्स भी। तो इंसानों के ऊपर कितना प्रभाव हो सकती है विद रिगार्ड टू डांस? जी, जैसे मैंने पहले ही आपको कहा कि जो इंटरनल फीलिंग है बेसिकली वही तो डांस है ना। और वो हर एक इंसान में, जिसमें जीव है, जिसमें प्राण है, वो सब में है। अब चींटी भी चलती है, वो भी खूबसूरत तरीके से किस लय में चलती है। हमारे यहाँ यतियां भी होती हैं, मतलब जो जानवरों को लेके भी, जैसे पिपीलिका यति होती है, कि चिंटी कैसे चलती है, पहले धीरे धीरे एकदम से पकड़ लेगी। वैसे ही आप जैसे बात करें कि मस्तिष्क पे कैसे प्रभाव पड़ता है। अब जो है विद्वानों ने या डॉक्टर्स ने कहिए या साइंटिस्ट ने कहिए, अब तो थेरेपी भी मतलब बड़ी अच्छे से होती है, डांस थेरेपी जिसे हम कहते हैं। हमारे यहाँ मतलब मैं भी जो लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन देने जाते हैं हम लोग कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, जो बड़े लेवल का थोड़ा सा रहता है, उसमें हम लोग थेरेपी में भी बताते हैं जो पंच तत्व हैं वो कैसे हमारे पाँव में, जो बेसिकल जो बेस है कथा का, दैट इज ह्यूमन टू से कि जो अल्फाबेट है, जैसे इंग्लिश का एबीसीडी है, कथा का तत्कार है। इफ यू हर्ड ता थे तत आ थे तत, जब हम लोग स्टेप को जब जमीन पे मारते हैं, तो जो पंच तत्व होते हैं हमारे पाँव में, वो बजते हैं। और आजकल जैसे अगर आप देख रहे हैं, मुद्राओं का बहुत उपयोग करते हैं योग में, जैसे होता है जैसे रामदेव बाबा जी को बहुत, अगर उनको फेमस पर्सनालिटी को लें, जैसे वो लोग ऐसे करते हैं, है ना, तो वो लोग ज्ञान मुद्रा कहते हैं। हम लोग यहाँ जैसे अगर इसको बिकॉज क्लासिकल डांस फॉर्म्स का मतलब ये जो शास्त्रबद्ध है, और नाट्य शास्त्र के ही पाठ आगे आगे चल के जो भरत मुनि जी द्वारा जो लिखा हुआ था, उसमें जो नृत्य ये अपने हस्त मुद्राएं हैं, वो दो तरीके की बताई हैं। एक है संयुक्त हस्त और एक है असंयुक्त हस्त। जो असंयुक्त है वो मतलब अकेले हाथ से बनाई गई, हमारे यहाँ उसको अराल मुद्रा कहते हैं, जिसे योग में ज्ञान कहते हैं। पर जो फैक्ट है, जो इसका रिजल्ट है, वो दोनों में सेम है। इससे भी ज्ञान वर्धन होता है, और इससे भी। जब हमारे यहाँ दोनों हाथ ऐसे रख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड उत्पत्ति मुद्रा। किसी भी हस्त को जब हम लोग उत्पन्न करते हैं, बेसिकली इट्स कॉल्ड उत्पत्ति मुद्रा। और इन मुद्राओं का इतना सुंदर मतलब अगर वैज्ञानिक तरीके से आप देखें, उस जमाने कितना मतलब साइंस डेवलप होगा, या उन लोगों की सोच कितनी रही होगी जिन्होंने इन चीजों को बनाया। आज तो सभी कहते हैं ना कि ये चीजें ऐसे करो तो ऐसा हो जाएगा, गैस्ट्रिक के लिए जैसे भ्रमर करते हैं। हमारे यहाँ भ्रमर मतलब जैसे पुष्प को दिखाना है, ये अल्पद्म होता है, ये भ्रमर होता है। दोनों को मिला के जैसे पुष्प को दिखाना है कि भंवरा घूम रहा है,
या करतरी होता है जैसे कैंची की तरह, जैसे बारिश को बताना है या बूंदे गिर रही हैं तो किस तरीके से बताना है, वो हम लोग हस्त मुद्राओं से दिखाते हैं। और दूसरा मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे थेरेपी, जैसे कई लोगों को रहता है कि हकलाने की थोड़ी बहुत बीमारी रहती है, जैसे म्यूजिक में क्या रहता है कि शंख बजाते हैं ना जब, तो उससे जो गले के जो हकलानापन है वो साफ रहता है। ऐसे ही डांस में भी हम लोग एक थेरेपी बताते हैं। कुछ एक शब्द है, जैसे वर्णमाला में होता है कंठ तालिका, उन्हीं से एक मतलब गुच्छा बनाया है शब्दों का, जैसे धा किट तक धुम किट तक दिग 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 कतान। इसमें सारी जो दंत है, ओष्ठ है, इन सब का प्रयोग किया है। उसी को जब आपको जहन में आ जाता है, उसको जब स्पीड अप करते हैं, तो उसी को उलट पुलट करके, जैसे मैं एक आपको डेमो बताता हूँ। जैसे धा किट तक धूम किट तक दिग 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 कतान। धा किट तक धूम किट तक दिग 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 कता। धा किट तक धूम किट तक दिग 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 कता। धा किट तक धूम किट तक धूम किट धा किट तक धा किट तक धूम किट तक धूम किट तक दिग 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 कतान दिग 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 कता। कतान 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 धा किट तक धूम किट तक धूम किट तक धा किट। मतलब ऐसे ऐसे बोलने से आपकी जो जुबान है ना, वो कितनी स्पष्ट हो जाती है। चाहे आप बेशक नाच ना जाने, नाच को अडॉप्ट नहीं करना चाहते, पर जो पर्सनैलिटी है ना, वो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए बड़ा अच्छा है नृत्य, मुझे ऐसा लगता है। Nice. ओह, थैंक यू। You're welcome, sir. Thank you so much for sharing all this knowledge with us. That's really wonderful. देखिए सर, अभी हमने मूवीज में जहां पर देखे हैं और सुना भी है हमारे फ्रेंड से, जब कभी उन लोग गुस्से में आ जाते हैं, ऐसा क्रोध में रहते हैं, तो तभी दे लेट आउट दैट एंगर थ्रू डांस. ओके. जी। So what impact does dance have on one's thought process, या उसको calm down करना, अपने गुस्सा काबू में रखना, अपने इमोशंस कंट्रोल में रखना? क्या डांस किस तरीके का प्रभाव या impact, how can it impact the lives of people with regard to their mental and emotional health? ओके। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक पहलू के मतलब एक पहलू के हर एक दो पहलू होते हैं। एक जैसे सिक्का होता है, हेड और टेल होते हैं, जी. वैसे ही जैसे कहते हैं कि विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है। वो चीज को आप कैसे अडॉप्ट करते हैं, बेसिकली थिंग इज दैट कि मैं कई बार मतलब बच्चों को भी बताता हूँ, छोटे छोटे बच्चे जहाँ पे स्कूल में हम लोग वर्कशॉप लेते हैं, कि जो माँ बाप है ना, अगर वो आपको पहले से ही हरी सब्जियां, पनीर, दूध, मक्खन खिलाएंगे, तो बच्चा तो बड़े होते होते वही खाएगा, क्योंकि उसने देखा ही वही है ना। अगर पहले आप पिज्जा, बर्गर, नॉन वेज, जो भी आप कह लीजिए, उसको खिलाएंगे, तो उसकी तो आदत ही वही होगी। ऐसे ही नृत्य है, जिससे आप सीख रहे हैं, जिस सोच से आप सीख रहे हैं, वो जहन में वैसे ही उतरता जाता है ना। अब वो जो इमेजिनेशन है, वो देखिए, मैं अगर आपको बताऊं, एक गाना अगर आपके जहन में होगा, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। उमराव जान का है, बहुत फेमस है, आपने भी सुना होगा। अब ये वही बात है ना, आप उस गाने को किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि हमने क्या देखा है, वो कोठे का नाच देखा हो उसको देख के, कि ये मुजरा है ना। पर आपकी सोच क्या है, अगर आप भी वही कहने की भाई आप आइए यहाँ पे, इस जगह पे, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, अगर उस थॉट से सोचेंगे, तो वो एक वो तरीका है। दूसरा, इसी थॉट से अगर आप उसको डिवोशनली सोचेंगे कि दिल चीज क्या है, ईश्वर दिल चीज क्या है, आप मेरी जान ले लीजिए, पर बस एक बार दर्शन तो दे दीजिए मुझे, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, वो थॉट है आपका। ऐसी क्योंकि कथक में सिर्फ ना केवल नाच ही, मैं पहले भी आपको कहा, ये जो नाच है इसके साथ बहुत सी चीजें जुड़ी होती हैं। गाना है, साहित्य है, कितनी कलाएं एक कलाओं में समाहित होती है। ऐसे अगर आप देखें, साहित्य जो है कथक का, साहित्य बहुत प्रभाव करता है। एक मैं आपको लाइन जरूर सिखाऊंगा, मतलब बताता हूँ। क्योंकि कथक केंद्र में क्या था कि हम लोग को योगा, गाना, पखावज, ये सब चीजें एलिमेंट्री सिखाई जाती थी। ठुमरी एक पार्ट है, बेसिकली इट्स अ सेमी क्लासिकल डांस सिंगिंग स्टाइल। उसमें क्या है, आप साहित्य की बात अगर मैं नृत्य में करूं, कथक में पर्टिकुलरली शब्द है, देखिए, मोहे छेड़ो ना नंद के
सुनहु छैल। अब मैं हल्का सा आपको डेमो दिखाता हूँ। मोहे छेड़ो ना नंद के सुनहु छैल। आपको साफ दिखाई दे रहा है कि मैं नर्तक जो कहना चाह रहा है कि लॉर्ड कृष्णा प्लीज डोंट टच मी। मोहे छेड़ो ना नंद के सुनहु छैल। मैं कह रहा हूं मुझे मत छेड़ो। अब मैं कह रहा हूं मोहे छेड़ो ना नंद के सुनहु छैल। एक में कह रहा हूं कि मुझे छेड़ो मत, अब मैं कह रहा हूं कि मोहित छेड़ो ना। तो वही आपकी बात है कि आप किस तरीके से चीज को लेते हैं ना, वो डिपेंड करता है आप पे। जो परवरिश होती है, जैसे मैं इसकी नाच की परवरिश की बात करूं, टीचर किस तरह से स्टूडेंट को सिखा रहा है, स्टूडेंट किस तरीके से लेना चाह रहा है। जी, ओवर टू यू। Excellent. I really love the way you shared that so beautifully. It's ओह, very, थैंक यू। very nice. Very interesting. Very interesting. अब देखिए, गहराई से कोई हमें समझाए ऐसा, तो तब हमको समझ में आती है। नहीं तो अलग अलग सोच विचार, सभी लोग अपने अपने विचारों में गुम हो जाते हैं। Until you get the right kind of people to share this in the right way, it makes sense. देखिए सर, अभी आप छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं, तो बच्चों का रिस्पॉन्स कैसे है? आर दे, बिकॉज नाउ दिस इज द मॉडर्न जनरेशन, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न वर्ल्ड, and they have access to, internet. They have all kinds of things to watch. So how do children relate to learning Kathak from you and in the school? ओके, देखो, जब हम लोग क्योंकि हम लोग स्कूल में वर्किंग हूँ, मैं पार्ट तो +1 +2 में डांस सब्जेक्ट है। अदरवाइज उनको हॉबीली मतलब उनको सिखाना पड़ता है हम लोगों को। अब मान लीजिए आप नर्सरी केजी में जा रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको तो ABCD समझ आता है। थोड़ी जो टीचर बता देती है, आप घर में मम्मी पापा या दादा दादी कहानियां सुना लेते हैं, वो चीजें उनको समझ में आती है। मैं सीधे बोलूंगा करता तथई करता तथई करता ता थे, वो समझ में नहीं आने वाला उनको, बिकॉज कथक इज अ स्टोरी टेलिंग डांस। तो हम लोग हल्की हल्की स्टोरियां बना देते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ गार्डन वेयर डक एंड डकलिंग्स मूविंग हियर एंड देयर। आफ्टर सम टाइम ducklings move that side and duck move that side, and they are wandering here and there. They are searching their mother. They are saying, hey mom, where are you, where are you? How they can say in Kathak, tatakuku tatakuku, and mom respond, hey kuku kuku, hey my dear, I'm here. And they are flying taka taka diga diga taka taka diga dig, and embracing dhati tha। वो बहुत इजी तरीके से समझाते हैं कि जो बच्चा बोलेगा वो ततकू कू, मौ बोलेंगी कुकू कुकू, उड़ेंगे तक तक दिग दिग तक तक दिग दिग धरधाती था। अब इस चीज को जब हम लोग 3 बार रिपीट करेंगे, दैट इज कॉल्ड बेसिकली तिहाई। तिहाई मीन्स विच वी रिपीट 3 टाइम्स। वो बच्चों के जहन में आ गई वो स्टोरी। अब हम लोग बताते हैं उनको कि देखिए, बिकॉज हम लोग शास्त्रीय डांस कर रहे हैं, शास्त्रीय नृत्य कर रहे हैं, तो लय और ताल में तो होगा डेफिनेटली। जो हम लय बनाएंगे ना, वो हम लोग ऐसे बनाएंगे कि धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा तिन तिन ता दिन दिन ततकू ततकू कुकू कुकू तक तक दिगे दिगे तक तक दिगे दिगे दाती ता ततकू कुकू कुकू तक तक दिगे दिगे तक तक दिगे दिगे दाती ता ततकू कुकू कुकू तक तक दिगे दिगे तक तक दिगे दिगे दाती ता। उनको स्टोरी समझ आ गई, हमने उनको सिखा दिया, बस उसमें पैर हिलाए। तो एक हो सकता है कि जो टीचर है वो टीचर किस तरीके से उसको शिक्षा देना चाह रहा है, क्या उसका तरीका है, वो मतलब उसके जहन में हो कि मैंने कैसे प्ले वे मेथड्स होता है। हम लोग CBSE की भी ट्रेनिंग्स मतलब वो वर्कशॉप लगाते रहते हैं, तो मैं उसको अटैच करता हूँ कैसे मैं उसको डांस में इम्प्लीमेंट कर सकूं उस चीजों को। तो मैं उस तरीके से उन बच्चों को सिखा दूं जिनको बिल्कुल भी नॉलेज ना हो, उसको भी डेफिनेटली हम लोग कथक सिखा देते हैं। एक बार मैं एक किस्सा सुनाऊं आपको। हम लोग एक थिएटर की वर्कशॉप थी, वहां पे उनको तभी क्वेश्चन था कि किस तरीके से योग जो है हमारे नृत्य में समाहित रहता है।
फिर मैंने कहा देखिए मैं आपको एक एक्सरसाइज करके बताता हूँ, ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो मैंने जो 1 2 पे किया वो इनहेल किया, 3 4 पे एक्सहेल किया। तो डेफिनेटली मैं इक्वलाइजेशन ऑफ ब्रीदिंग सिस्टम कर रहा हूँ, प्राणायाम कर रहा हूँ। ऐसे मतलब छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं, वो कहीं न कहीं कहाँ से कैसे जुड़ जाती है, उनको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। फिर वो कितनी देर तक हम लोग योग पे ही बातें करते रहे उन चीज़ों की। थैंक यू वेरी मच। अभी हम ये पूछना चाहेंगे सर आपसे, now how much of what is the percentage of men and women joining this the dance form or the dance stream to take it up as a profession? क्या पहले जैसे लोग आते हैं या थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं? क्योंकि आप जो कर रहे हो, इट इज अ यूनिक थिंग. Many of them will not come forward in today's world. All of them are looking for earning big bucks, right? So you are saving the heritage, the cultural heritage of India, and promoting it to the younger generation, taking it on forward. So I'd like you to share that, like, do men, women come out now and take this up as a profession? Yes or no? ओके। अम, इससे मुझे ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग कहते हैं कि हमारे जो भारत देश है उसकी रक्षा जो है वीर जवान कर रहे हैं, तो हम लोग उन पे ऐसे बना देते हैं, बहुत से बोलेंगे कि हमें भी ऐसे करना है, वो करना है। पर जब बारी आती है ना आपको, अगर आपको कहें कि हमें भी अपने बच्चों को फौजी बनाना है, तो 20 बार इंसान सोचता है, अरे भी फौज में जाएगा, उसका फाइनेंस कैसा रहेगा, वहाँ कैसे रहेंगे वो। सेम कंडीशन आजकल क्लासिकल डांस फॉर्म में भी मुझे दिखती है। कि मान लीजिए अगर आप मेरी परफॉर्मेंस देखेंगे, तो 20 जने मुझे कहेंगे कि क्या बात है दिनेश जी, क्या बात है? आपने तो बड़ा सुंदर वो किया, नाच किया। मतलब ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अगर मैं उन्हीं के लड़के को स्पेशली मैं बता रहा हूँ, लड़के को कहूँ, "अरे! आप इसको भी नृत्य सिखाइए।" तो उनके ज़हन में एकदम से वो बात पिंच कर जाएगी, "अरे! लड़कियों को क्यों डांस सिखाएँ भई?" इवन तक कि लड़कियों को भी अब तो जिनका दिमाग बहुत सोच ऊँची है, वो लोग तो इन चीज़ों को नहीं मानते। अदरवाइज़ जो गाँव की बात है या कस्बे की बात है, ये बिग सिटी में फिर भी लोग मतलब इन चीज़ों को समझते हैं या जिन्हों एजुकेशन जिनके पास है। पर रेशियो की बात अगर कहें तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी भी मेन जो पावर है, वो थोड़ी कम है बनिस्बत औरतों के। और वास्तविकता तो ये है कि अगर आप जिन्हें नटराज कहा जाता है, वो पुरुष थे। नटनागर कृष्ण, वो पुरुष थे। और आने वाले जितने भी अगर क्लासिकल डांस फॉर्म्स में देखिए आप, कथक की बात नहीं कर रहा मैं, कथक में तो पंडित बिरजू महाराज जी, जयकिशन महाराज जी, राजेंद्र गंगानी जी हुए, केलुचरण महापात्र जी, इसके कुचिपुड़ी डांस के, ओडिसी के, मतलब ऐसे कई जेंट्स लोग हैं जिन्होंने इस परंपरा को निभाया है। पर मतलब एक चीज़ को सराहना और एक चीज़ को एडॉप्ट करना, ये बिल्कुल ही डिफरेंट लगता है मुझे जब प्रैक्टिकली हम लोग सोचते हैं। और प्रोफेशनली तो वो लोग जाते हैं, जिनको ये लगता है कि मुझे इसमें आनंद भी आ रहा है, अर्निंग सोर्स भी हैं। और डेफ़िनिटली देखिए मुझे ऐसा लगता है कुछ एक प्रोफ़ेशन्स होते हैं, जिसमें आपको अर्निंग सोर्स अप्रॉक्सिमेटली जैसे होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग है, डॉक्टरी है, उसमें अप्रॉक्सिमेटली है, आपको पता है कि आपकी जीविका चल पड़ेगी कहीं न कहीं से। चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाएँ, चाहे सेमी गवर्नमेंट, चाहे टोटली प्राइवेट में। हमारे यहाँ ये है कि गवर्नमेंट जॉब में थोड़ी-सी दिक्कत है, इतनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है। प्राइवेट में बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं आजकल के ज़माने में लेता कोई कि एकेडमी चला लें। एकेडमीज़ का भी क्या है कि कभी आपके पास बहुत ज़्यादा बच्चे आ जाएँगे, कभी एग्ज़ाम लग जाएँगे तो थोड़ा रेशियो कम हो जाएगी। आपको रेंट ही लेना है, अपना है, कैसा है। तो उस दौर से थोड़ा बहुत तो मतलब हेजिटेट करते ही हैं इस किसी भी प्रोफ़ेशन को, क्लासिकल चाहे म्यूज़िक है, डांस है। पर ऐसा भी नहीं कि अपॉर्च्युनिटीज़ भी है कहीं। अगर आप देखिए टीवी शो में ही देख लीजिए। और मतलब वो आपको ये है कि आपको करना क्या है, ट्यूशन पढ़ानी है, एकेडमिक्स चलानी है या आपको जॉब में जाना है। तरीके तो बहुत है कमाने के या आपको प्रोफेशनल ही बनना है। पर जो रेशियो है फिर भी मैं ये कहूँगा कि अभी मुझे ऐसा लगता है जैसे 30 और 70 की है। जी, ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट. अभी हम ये जानना चाहेंगे दिनेश साहब आपसे, आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आए जब आप डिसीजन ले चुके हैं डांसर बनने का, और एक नृत्य इंस्ट्रक्टर, टू पुट इट इन द राइट वे, अ डांस इंस्ट्रक्टर, you have
taken the decision to enter completely as a professional into this dancing arena, did you face any type of backlash from the society or anybody, like, saying why has he chosen this field? Apart from family, of course, they will tell. What about the people around you, your friends, unknown people, और दूर के रिश्तेदार या दूर जो सर्कल है, कॉलोनी में रहते हैं, क्यों ये ऐसा क्यों लिया है? डिड दे एवर क्वेश्चन यू, और जो उनकी बातें कभी आपको हर्ट करा है कभी? देखिए, मैं शुरू से बचपन से ही खुले विचार कर रहा हूँ, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिया हूँ। जिस जमाने में लोग मतलब हमारे यहाँ मंडी में भी कॉलेज हैं, तो मुझे था कि मैंने शिमला में पढ़ना है। शिमला इज बेसिकली स्टेट, मतलब जो हमारा यूँ कह लीजिए कि शिमला जो है हेडक्वार्टर है हिमाचल प्रदेश का, कैपिटल जो है, तो वहाँ पे मैंने कहा कि मुझे वहीं पे पढ़ना है, तो मैं वहीं पे पढ़ा। उसके बाद मुझे लगे मुझे कथक केंद्र में ही जाना है। मुझे जो करना होता है मैं ज़िंदगी में अभी भी, मेरी जो सिचुएशन ऐसी है, मेरी फैमिली में है, वाइफ हैं, 2 मेरी बेटियाँ हैं, तो उनको भी मैं वही कहता हूँ कि जो आपके मन में आता है, वो आप कीजिए, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो। डेफ़िनिटली जो आप करेंगे, उससे आप कुछ ना कुछ सीख ज़रूर लेंगे। हाँ, इंटीमेट करें। आप जिस जगह जाना चाह रही हैं, जिस प्रोफ़ेशन को चुनना चाह रही हैं, जहाँ पे भी आम ज़िंदगी में जो भी कुछ करना चाह रही हैं, उसे इंटीमेट ज़रूर करें। हम आपको आगाह कर सकते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है, जो मेरा तजुर्बा है। पर आप बिल्कुल ही मना कर दें कि नहीं, आपको ये नहीं करना है। ऐसा ही हल्का-फुल्का सबके साथ होता ही है। जहाँ अच्छाई है, वहाँ बुराई भी है। जहाँ आपको एक स्पोर्ट वाले हैं, वहाँ पे आपको खींचने वाले भी मिलते ही हैं। मुझे भी ऐसे कई बार हुआ, पर मुझे था कि मुझे इसी प्रोफ़ेशन में जाना है, और इसी जो मेरी ज़िद थी, उसने मुझे फर्स्ट मेल पोस्ट ग्रेजुएट कथक डांसर हिमाचल प्रदेश का बनाया। और जो मेरी सोच थी कि सच में ऐसा होना चाहिए, कि कुछ ना कुछ ऐसी किताब होनी चाहिए, जिससे बच्चों को, आगे आने वाली जनरेशन को मैं पर्टिकुलर कुछ दे पाऊँ। और उसी सोच ने जो है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया डिक्शनरी बनी कथक शब्दकोश। तो ये चीज़ें मतलब कहीं न कहीं ऐसा लगता है, जब आपका जुनून हो, जज़्बा हो, पर हाँ, जोश के साथ, मैं कई बार कहता हूँ बच्चों को भी, जोश के साथ होश होना बहुत ज़रूरी है। आपके पाँव ज़मीन पे रहने चाहिए, चाहे आप जितना मर्ज़ी स्टार बन जाए, जितना बड़े गुरु बन जाए, जितने मर्ज़ी आपकी इनकम हो जाए। हम लोगों से डेफ़िनेटली अलग-अलग वर्ग से लोग आते हैं, एचएस, आईएएस भी सीखते हैं। इतने करोड़पति सीखते हैं जिनको तो मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते कि इतनी प्रॉपर्टी हमारे पास होगी। बिल्कुल निमन लोग भी सीखते हैं। तो मेरे को लगता है कि जनरली जब आप एक बार सिखाना शुरू करते हैं, उन जगहों को छोड़ देते हैं, तो एक जो सोच डेवलप होती है, वो डेफ़िनिटली कहीं न कहीं वो अग्रसर होती है। जी, ओवर टू यू मैम। यस, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट सर, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट। अभी हम ये पूछना चाहेंगे, देखिए भारतीय लोग तो इंटरेस्टेड है, थोड़े लोग तो आएंगे, दे विल टेक पार्ट इन द डांस training sessions. They will get trained and they become good dancers, classical dancers. We've also seen foreigners, वो लोग भी आसक्ति रखते हैं हमारे भारत देश के जो आर्ट फॉर्म है, जो डांस फॉर्म है। तो what you would love to share with regard to foreigners learning Indian classical dances, for example Kathak or Bharatanatyam? Over to या अ, मुझे ऐसा वही मतलब बात है कि अब जो है, इतनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ है आईसीसीआर के थ्रू, ये लोग आते हैं। कथक केंद्र में जहाँ हम लोग सीखते थे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा, उस समय एनएसडी जो था, वो हमारे यहीं था। मतलब एनएसडी के अंदर कथक केंद्र था, मंडी में आईटीओ के पास, मंडी हाउस में ही, दिल्ली में। उसके बाद वो अलग-अलग हो गया, कथक केंद्र चाणक्यपुरी चला गया, एनएसडी वहीं पे रह गई। उस समय क्या था कि जैसे उस समय से अब तो बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स मिलना शुरू हो गई हैं। कुछ एक लोग घूमने आते हैं यहाँ पे, जब वो इंडियन कल्चर को देखते हैं, फिर उनको लगता है कि नहीं, हमें भी ये सीखना है। चाहे क्लासिकल डांस है, म्यूज़िक है, योगा है, या लिटरेचर को भी बहुत सीखते हैं लोग। तो उनसे जो मुझे लगा कि जो आईसीसीआर या संगीत नाटक अकेडमी ने जो स्कॉलरशिप का पार्ट किया, उससे ज़्यादा बेनिफिट हुआ। वो लोग आने लगे यहाँ पे। अब आपको मालूम ही है कि फाइनेंस सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, चाहे इंडिया हो, चाहे फॉरेनर हो। तो जब फाइनेंस मिल जाता है ना, फिर आपको एक तरह के अग्रसर होना है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हो जाता है। अब जैसे हम लोग गए, हम लोग दिल्ली में रहते थे, वहाँ उस समय पहले हॉस्टल था, फिर हॉस्टल बंद हो गया, तो हम लोग को रूम लेके रहना पड़ा। तो दिल्ली में रहने का मतलब है, जब आप एक अकेला रूम ले रहे हैं, क्योंकि अगर शेयरिंग करेंगे तो फिर हमारा रियाज़ छूट जाता था। जैसे अकेले रहना है,
उस टाइम में 4-5 हजार का कमरा लेना, खाना पीना, मतलब 8-10 हजार वो खर्चा। तो 2001 का पास आउट हूँ मैं, सोचिए आप। तो उस टाइम मतलब पैसा कितना बॉन्ड, मतलब मतलब अगर फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं होती घर की तो वो भी बहुत मुश्किल था। तो मुझे लग रहा है कि जो विदेशियों को भी सबसे पहला जो प्लस पॉइंट है वो फाइनेंस है। उसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इंडिया में, जब वो सीखना शुरू करते हैं तो प्रोग्राम्स जो होते हैं वहां पे वो जब जाते हैं तो नो डाउट इंडियंस को तो मिलता ही है मौका, पर जो फॉरेनर्स को भी मिलता है ना, वो एनहांस करता है उनकी जो एक लर्निंग प्रोसेस है। वहां से जब उनको लगता है कि नहीं, इससे सीखने से ये चीजें भी होती हैं, फिर न्यूज़पेपर में आना ये सो, थोड़ा उनको पैशनेटिव हो जाते हैं वो, डेफिनेटली वो तो। जी, ओवर टू यू मैम। थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल ऑफ दैट, दैट्स रियली नाइस। अभी हम ये पूछना चाहेंगे, क्या किसी फिल्म स्टार को आपने कभी ट्रेन किया है? क्योंकि फिल्म्स मूवीज में भी देखते हैं, कभी कभी वो कथक करते रहते हैं डांस। तो क्या आपको कभी मौका मिला है टू ट्रेन एनी ऑफ द फिल्म फ्रैटर्निटी? नहीं, इंडियन सिनेमा की बात करूं वहां तो नहीं मैंने किया, क्योंकि जब हम लोग कथक केंद्र में थे तो माधुरी दीक्षित जी आते थे वहां पे महाराज जी से सीखने कथक को। और पर जो यहाँ पे हिमाचल में है, वहां पे जो लोकल मूवीज होती हैं या जो डांस फॉर्म्स होते हैं, एडिट करना होता है उनको, वहां पे हम लोगों ने काफी काम किया हुआ है। जो हिमाचल का कल्चर है उसको कैसे कथक स्टाइल में मतलब उसका जो स्टाइलाइज है, वो चीजें हम लोगों ने यहाँ पे काफी की हैं। पर ऐसा अगर आप कहें बॉलीवुड या हॉलीवुड, वहां पे नहीं मैंने कभी किया। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। थैंक यू सर। जी आप सर, you are the first male postgraduate with regard to Kathak dancing, right? So you're the first male postgraduate Kathak dancer इन हिमाचल प्रदेश। in Himachal Pradesh. या How does या that feel? How does that feel? मुझे मतलब वही है कि अ, एक इंसान होता है ना कि वो देख लेता है कि मंदिर कहाँ है। वो पौड़ियाँ चढ़ते थे, उसका टारगेट पौड़ियों को गिनना नहीं होता। जो पौड़ियाँ गिनना है कि 1 चढ़ी, 2 चढ़ी, 3 चढ़ी, उसका टारगेट होता है कि मेरे को कहाँ जैसे वो मूर्ति दिख जाए जिसके मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तो मुझे कभी मतलब आभास ही नहीं मतलब आभास ही नहीं हुआ कि कैसे मैं वहां तक पहुंच गया, कब मैं फर्स्ट मेल पोस्ट ग्रेजुएट बन गया। बस वो सीढ़ियाँ चढ़ता गया, चल रहा है। और कभी मुझे ज़हन में भी नहीं आता कि ये चीज़ होनी थी, क्या क्या था। पर ईश्वर को था कि अगर मैंने कुछ मेहनत की तो डेफिनेटली उन्होंने फल दिया है मुझे। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ ईश्वर का। जी, ओवर टू यू। That's wonderful. That's really nice. अभी आप हिमाचल प्रदेश को छोड़ के पार करके दूसरे स्टेट्स में आ चुके हैं क्या? अपने कला को दूसरे स्टेट्स में आपने प्रदर्शित किया है, इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं? जी, जैसे मैंने कहा कि मैं दिल्ली का पास आउट हूँ कथक केंद्र का, तो वहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा शोज़ किए हैं। अभी हाल में भी कथक केंद्र का कथक महोत्सव हुआ, तब भी मैं गया था। कोलकाता में हम लोगों ने किया है। अपने जो बेंगलुरु में है इनका शिरडी साईं बाबा जी का जो मंदिर है, वहाँ पे हम लोगों ने प्रपर्ति। मतलब बहुत पुट्टावर्ती में। वो तो डिवाइन जो मतलब वो था, 2 ढाई हज़ार लोग बैठे हैं, आपको देख रहे हैं। वहाँ पे किया हुआ है हम लोगों ने। और क्या कहते हैं इसको, उम, यूपी लखनऊ में किया है। इन जगहों में गया हूँ मैं। कभी बाहर देश हरियाणा। गए हैं? जी, कभी बाहर देश गए हैं? नहीं, बाहर देश नहीं गया। अगर आपको मौका मिला जाने का, क्या आप राजी हो जाएंगे? बस मेरा स्कूल नहीं क्लैश होना चाहिए, क्योंकि जो प्रायोरिटी अब मेरी है वो स्कूल है। जो छुट्टियां मतलब एक बार मेरे को जकार्ता का आने का था, पर वो उस टाइम पीक पॉइंट पे था कि यहाँ पे मार्च में एग्जाम्स होते हैं। फिर मेरा जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो 70 नंबर का है, 30 मार्क्स का थ्योरी है। तो उस टाइम था भी कि एक बार बन रहा था। वो फेब लास्ट और मार्च का था, 1 महीने का। फिर वो नहीं बन पाया था। जी जी जी। शायद आप जब स्कूल एनुअल डे फंक्शन होगा या एनी ऑफ द मेन प्रोग्राम्स इन द स्कूल, आई थिंक यू विल बी वेरी बिजी। आप बहुत बिजी होंगे बच्चों को सिखाते हुए, एम आई राइट? डेफिनेटली हम लोग का जो डीएवी इंस्टीट्यूशन है, हम लोग की डेली एक्टिविटीज हैं वो भी काफी रहती हैं। जो एनुअल फंक्शन है, मतलब उनको एनुअल फंक्शन का नाम ना देके जैसे क्लास कॉन्सर्ट्स होते हैं हमारे, तो 6-7 तो वो साल में मतलब मेन मेन होते ही हैं। फिर कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कुछ सिलेबस का होता है अपना टारगेट, तो चला रहता है सारा। और ईश्वर ने दिया ही यही काम है, तो क्यों ना उसे अच्छे से बखूबी निभाएं।
भारत सरकार क्या कर रही है इस विषय पर, इस विषय में, लाइक टू स्प्रेड द the culture of India, or the passion of dancing, the classical dance of India. What is the government of India doing? Kya, the government of India is making it like compulsory that everyone should learn. I think, mere राय में, government should make it compulsory for every student to learn any one of the classical dances of India according to their choice. What do you have to say about it? मेरी सोच थोड़ी सी अलग है। मुझे नहीं लगता कि किसी पे वो थोपने वाली बात हो जाएगी कि आपको नहीं करना है तो करना ही, जैसे हिटलर की तरह कि नहीं ऐसा है तो ऐसा ही होगा। हाँ, जैसे आजकल जो एलिमेंट्री एजुकेशन चला हुआ है, उस तरीके से उनको जो परफॉर्मिंग आर्ट सब्जेक्ट है, वो कंपल्सरी करना चाहिए। मतलब कम से कम 10th या +2 तक। जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, वो लैंग्वेज कंपल्सरी है। ऐसे मैथ्स है या साइंस है, वो कंपल्सरी है, वो आपको सीखना ही पड़ेगा। जिंदगी में कहीं ना कहीं मैथ आना ही चाहिए, इंग्लिश हिंदी आनी ही चाहिए। वैसे परफॉर्मिंग आर्ट एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें गायन वादन नृत्य पेंटिंग, ये सब स्कल्पचर, ये सब चीजें होनी चाहिए, चाहे इसको थोड़ा 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 पार्ट हो। और डेफिनेटली अब जिसको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होगा, वो कहीं ना कहीं फिर वो उसकी तरफ अग्रसर हो ही जाएगा। जी, ओवर टू यू मैम। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। जी। अभी आपकी बकेट लिस्ट में अभी क्या बाकी है? आप यहाँ तक तो पहुंच गए हैं, इतना सब कुछ कर चुके हैं, तो बकेट लिस्ट में अभी बाकी क्या है? ऐसी बहुत ज्यादा तमन्ना तो नहीं है, बस ये है कि जब तक जीऊं तब तक नाचता रहूं। वाह, ब्रिलियंट, जी जी। दैट्स रियली नाइस। देखिए, अभी हम ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस के बारे में बात करेंगे। अब बहुत सारे लोग, दे कांट कम डायरेक्टली टू हिमाचल प्रदेश एंड लर्न इट फेस टू फेस फ्रॉम यू, दे वुड लव टू लर्न इट ऑनलाइन। तो ये प्रोसेस कैसा होता है, टाइमिंग्स क्या है, या वीकडेज पे रहता है या सिर्फ वीकेंड्स पे रहते हैं ट्रेनिंग सेशंस रहती है? यू कैन शेयर दैट विद अस। या हम लोग थ्राइस अ वीक लेते हैं, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे। और 5 to 6 उसकी क्लासेस रहती हैं अप्रोक्सीमेटली। इन केस जैसे मुझे प्रोग्राम हो तो फिर मैं संडे या जो भी टाइमिंग होता है उसको चेंज करते हैं हम लोग। अदरवाइज फिक्स है 5 to 6, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे। और इस पे ही मतलब जूम पे ही हम लोग लेते हैं। अगर आप के साथ कनेक्ट होना है किसी को, अब ये प्रोग्राम वॉच करेंगे, दे वांट टू कनेक्ट विद यू, आपका शिष्य बनना चाहेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन, इट्स देयर चॉइस, जी। तो हाउ डू दे रीच आउट टू यू? आपसे कैसे संपर्क करें वो लोग? My mobile number is 9625670885. So dear friends, if you'd love to learn this beautiful art dance form called as Kathak, you can learn it from him. He's a master in it, and you can learn it either online or offline. You can connect with sir. He's a Yes, wonderful person. Abhi sir, when we involve in dance, it could be any form of dance. We are focusing only on classical dance today in India. That is the Indian classical dance. So it will keep us fit and fine. Am I right? We don't need to go to the gym, I guess. If we, yes. yeah, yeah, yeah. इसके बारे में थोड़ा, जिम ना जाए तो थोड़ा सा लेजीपन आ जाता हम में कि जिम जाना है, ऐसा वर्कआउट करना है। इफ वी गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ दिस क्लासिकल डांस और एनी फॉर्म ऑफ डांस, so I think it has a wonderful effect on our body, and it keeps us slim and trim. I mean, no matter what age we are. Am I right? Yes, sir? या क्या होता क्या है कि जैसे कि नॉर्मल लाइफ को जीने के लिए हम लोग एक्सरसाइजेस करते हैं ना, जैसे जिम जाते हैं या जनरली घर पे एक्सरसाइज करते हैं, योगा कर लेते हैं। वैसे ही जब हम लोग डांस भी सिखाते हैं ना, उससे पहले हम लोग जनरल एक्सरसाइजेस सिखाते हैं। जैसे मैं इसी की बात करूँ, ये शिखर हस्त चक्र है, फिर मध्य हस्त चक्र है, तल हस्त चक्र है, पुष्पक है, या कोण सुचित है। जैसे राउंड्स हैं, कथक बेसिकली जो जाना जाता है वो राउंड्स ऑफ फुटवर्क के लिए ज्यादा या एक्सप्रेशन पार्ट के लिए जाना जाता है। तो उनकी जब टेक्निक्स जो हम लोग सिखाते हैं ना, वो टेक्निक इतनी स्ट्रांग, इतनी मतलब मैथमेटिकली बनाई गई है कि जैसे मान लो आपको जिम जाते हैं बेसिकली ना, मतलब डोले सोले बनाने के लिए, तो जो ये है ना, एक तो आपका योगा हो रहा है, इनहेल हो रहा है, एक्सहेल हो रहा है, फिर आपके बाजू ऐसे जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो क्या है, मसल्स को बना रहे हैं। जब पैर फुटवर्क आपके मारते हैं कि ता थे ते तत आ थे ते तत, वो स्ट्रांग हो रही है आपकी। और ऐसे ही जब मतलब राउंड्स लेते हैं हम लोग, या जैसे मींड होती है, या जो हम लोग मूवमेंट्स लेते हैं, जो एक्सरसाइज वाला पार्ट है,
उससे ही इतनी बॉडी फिट हो जाती है कि कहीं आपको एक्स्ट्रा करने का ही जरूरत नहीं होती है। और पर्टिकुलर क्या होता है कि आप जिम में जाते हो ना, तो आप पर्टिकुलर बॉडी पे मतलब ज़्यादा काम करते हो। जो शरीर का जो ढांचा है, उस पे काम करते हैं। जब डांस सीखते हैं, चाहे कोई भी क्लासिकल डांस फॉर्म है, उससे क्या रहता है, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका अध्यात्म जागता है, आपका योग जो है वो हो जाता है, आपकी थेरेपी हो जाती है, जो डांस थेरेपी है या म्यूजिक थेरेपी है, आपकी एक्सरसाइज हो जाती है, पसीना जब निकलता है, तो कई चीज़ें हमारी इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। तो डेफिनिटली डांस जाना सीखना मुझे लगता है कि बहुत अच्छी एक एक्सरसाइज भी है, एंटरटेनमेंट का साधन भी है, स्वस्थ रहने का साधन भी है। जी, ओवर टू यू मैम। यस सर, वेरी ट्रू, दैट्स रियली नाइस। अभी हम ये भी पूछना चाहेंगे आपसे सर, क्या कुछ डाइट ऐसा कुछ खास है जो आप खाते हैं, लाइक यू नो, इज देयर एनी डाइट दैट यू फॉलो दैट टू कीप अस स्लिम एंड ट्रिम एंड सच दैट यू कैन डू योर डांस मूव्स इजीली, बिकॉज आपके जो मूव्स है, आपके जो योर बॉडीली मूवमेंट्स आर देयर विद रिगार्ड टू डांस, इट्स वेरी वेरी ग्रेसफुल। तो ऐसा कुछ खास खाने का चीज कुछ रहता है टू मेंटेन एन आइडियल वेट टू बी अ गुड डांसर? मैंने कभी अपनी शरीर पे आजमाया नहीं, मैं तो जो मिले, जिस चीज का मन हो खाएं। मतलब वही है ना कि जो आप खा रहे हैं, उसको आप डांस के थ्रू पचा भी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हाँ, ओवर ईटिंग तो डेफिनेटली वो कहीं न कहीं आपको हार्म करती है। पर ऐसा कभी नहीं मैंने किया कि नहीं आज खट्टा नहीं खाना है या ऑयली नहीं खाना है, फ्रूट्स पे ज़्यादा खाना है या ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा खाने हैं, नॉर्मली कुछ वैसा नहीं खाना है। नॉर्मली हम लोग की जो रूटीन होती है कि सुबह दूध, ड्राई फ्रूट, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, पर वो कभी ऐसे अवॉइड नहीं किया कोई चीज़ कि नहीं इस चीज़ को बिल्कुल ही नहीं खाना है। जी, ओवर टू यू मैम। सर, अभी हम सब इस धरती पर थोड़े दिनों का मेहमान ही है। अभी हम सब जी। जानते हैं, जब हम मेच्योर हो जाते हैं मन से तो समझ में आएगा, वी आर नॉट परमानेंट ऑन दिस अर्थ, बस थोड़े दिनों के मेहमान हैं यहाँ पर। जब दिनेश गुप्ता इस धरती पर नहीं रहेंगे एक दिन, तो लोग दिनेश गुप्ता को कैसे याद करें, किस विषय पर याद करें, क्यों याद करें दिनेश गुप्ता जी को? देखिए, वो कहते हैं कि इंसान की जो पहचान है उसके कर्मों से होती है। एक तो हिमाचल की जीके में मेरा नाम है, हु इज़ द फर्स्ट मेल पोस्ट ग्रेजुएट कथक डांसर इन हिमाचल प्रदेश। जैसे आईएएस के एग्ज़ाम होते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पे एचएएस के होते हैं, हिमाचल एडमिनिस्ट्रेशन के। उनमें वो प्रश्न पूछा जाता है, जीके में आता है। एक कथक शब्दकोश मैंने जो बुक लिखी है, वो फर्स्ट टाइम हुई है, वो कहीं पे भी रिमूव आप उसको नहीं कर सकते हो। एक होता है ना कि आप गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, इतने स्पिन ले लिए, उसको आपको रिमूव करने वाला कोई ना कोई आएगा डेफिनिटली। कि जो भी रिकॉर्ड आप फिजिकली बनाते हो। ये जो 2 रिकॉर्ड है ना मेरे, वो कोई भी अब नहीं तोड़ सकता। जब तक मतलब इंसान है, जब तक उसको नाच को सीख रहा है या जब तक चली हुई है पृथ्वी, तो वो 2 रिकॉर्ड जैसे पंडित बिरजू महाराज जी कथक डांसर है, लखनऊ घराने के हैं, वो कोई नहीं तोड़ सकता उसको। ऐसे ही मुझे लगता है कि ये जो 2 चीज़ें हैं, ये मुझे ज़िंदगी भर मेरे होते हुए भी, मेरे होने के बाद भी याद रखेगी। जी, ओवर टू यू मैम। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट, दैट्स ग्रेट। अभी देखिए, एक इमेजिनरी क्वेश्चन, जस्ट आस्क यू एन इमेजिनरी क्वेश्चन। इमेजिन कीजिए आपके हाथ में एक मशीन देंगे और वहां पर एक लाल वाली बटन होगी, रेड बटन। यू हैव टू प्रेस दैट बटन, दैट विल टेक यू इनटू पास्ट एरा, पुराने जमाने में ले जाएगी आपको। वहां पर जाकर छोटी सी टास्क करनी है आपको, वहां पर किसी और का जिंदगी जीनी है थोड़ी दिनों के लिए, 4 हफ्तों के लिए जी के फिर लौट के आना है। अगर ये मौका आपको मिला, किसका जिंदगी चुनना चाहेंगे आप, किसकी तरह जीना चाहेंगे वो 4 हफ्तों में, और फिर लौट के आनी है? हु इज द पर्सन यूड लव टू सेलेक्ट, relive his life or her life and come back? जी। मुझे अगर मैं सच में कहूँ तो मुझे वो लाइफ जीनी है जो देवदासियाँ जिया करती थी उस ज़माने में। जो मंदिरों में नाच हुआ करता था, उस ज़माने का जो ऑरा था, वो जो डिवोशनल जो उनकी थी, एक अपने जिसके साथ वो चाहे ब्याही रहती थी उस समय तो, उनकी शादी मूर्ति के साथ कर दी जाती थी। कैसे उनका रहन-सहन होता होगा, कैसे वो नृत्य करती होंगी उन मंदिरों में, जो आजकल अब देखने को ही नहीं रहा है। हालाँकि देवदासी प्रथा अभी भी ज़िंदा है, पर जो ट्रेडिशन थी उस ज़माने, वो ज़िंदगी मैं जीना चाह रहा हूँ। चाहूँगा अब तो, क्या ही जीऊँगा, चाहूँगा। जी, ओवर टू यू मैम। ऐसे कुछ यंत्र आज इन्वेंट करनी है हमारे साइंटिस्ट को, दे शुड इन्वेंट समथिंग लाइक दैट टेक अस इनटू पास्ट एरा एंड ब्रिंग अस बैक अगेन।
It's just an imaginary way of तो having. हमारे जीते जी हो जाए तो बस हम लोग भी उस ऑरा में जाएं और वापस आ जाएं। जी जी, फ्यूचर में भी जी जा सके, पास्ट में भी जा सके, फिर प्रेजेंट में आ जी जा जी जी। जाना है, समथिंग लाइक दैट। इट्स जस्ट एन इमेजिनरी क्वेश्चन वी शेयर्ड माय डियर फ्रेंड्स। सर अभी आप देखिए, अब जब कथक का जो वो मूवमेंट्स रहते हैं, तो आंखों का भी इट्स अ लॉट ऑफ expression or emoting through eyes as well, right? So what role जी does eyes play when you perform Kathak? Can you share that? या डेफिनेटली। देखो, हमारे यहाँ जो नेत्र है, उसके भी जो अलग मतलब अंग, उपांग और प्रत्यंग, ये तीन चीजें अलग अलग है। अंग मतलब पूरा शरीर, प्रत्यंग उसका भाग, जैसे बाजू है, नेक है, कमर है, और उपांग मतलब उसके बिल्कुल छोटी छोटी चीजें जैसे आंखें हैं। अब मुझे मान लीजिए श्रृंगार रस बताना है, तो डेफिनेटली मैं हाथ का तो मतलब मुद्राओं का तो यूज करूंगा ही, पर जो आंखें हैं ना, वो भी श्रृंगारिक हो जाएंगी। ऐसे मुझे रौद्र बताना है, तो मैं बिल्कुल आंखें फाड़ फाड़ के करूंगा ऐसे रौद्र को। आंखों को बहुत सारे रोल रहते हैं। वही बात है, जैसे जिंदगी के लिए अगर आपको कुछ अच्छा बुरा देखना है तो आंखें चाहिए, वैसे ही आंखें जो नाच में भी हैं। अब मान लीजिए, देखिए ऐसे खड़े हैं हम लोग, मैं एक आईब्रो अगर ऊपर उठा देता हूँ ना, तो आपको पता लग जाएगा मैं गुस्सा कर रहा हूँ। आंख से आंखें फाड़ दूंगा तो गुस्सा कर रहा हूँ, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी, ओवर टू यू मैम। Yes, sir. Thank you so much, Dinesh sir. अभी आप गुस्सा के बारे में शेयर किया है जस्ट नो, अभी आंख वांख, आई मीन यू सेड लाइक आपके आंखों के साथ थोड़ा सा एक्सप्रेशंस आपने दिखाया है, श्रृंगार फर्स्ट यू सेड एंड देन यू सेड क्रोध और एंड ऑल ऑफ दैट। अभी आपको जिंदगी में जब कुछ सिचुएशंस सही नहीं है, जो देखते हैं किसी और के साथ कुछ अत्याचार जुल्म होती रहती है, तो आपको गुस्सा किस चीज पर आती है भारत देश को लेके खासकर? what makes you angry when you see things around that is not okay? What is that particular thing that makes you angry and want to speak out? किस विषय पर आप नाराज हो जाते हैं या किस विषय पर आपको गुस्सा आता है भारत को लेके? मुझे पॉलिटिक्स को लेके बड़ा गुस्सा आता है। जो नॉर्मली पॉलिटिक्स है, मैं बड़े लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो छोटे छोटे लेवल पे पॉलिटिक्स होती है। मान लीजिए अगर मैं अपनी बात करूं कि मुझे परफॉर्म करना है, मैंने अप्लाई किया है। कई जगह ऐसा होता है कि आपको अप्लाई करना होता है, कई जगह ऐसा होता है कि आपको ऑटोमेटिक लोग बुलाते हैं। जहां पे आपको अप्लाई करना है, वहां सिर्फ ये नहीं देखा जाता है कि आप परफॉर्मर हैं, ये देखा जाता है कि आप कहाँ से हैं, आपके रिलेशन किस पॉलिटिशियन से हैं, या किसके साथ उठना बैठना है आपका। ये सब जब चीजें आ जाती है ना, तो वहाँ कलाएं मर जाती हैं। ये मेरे को बिल्कुल भी मतलब बर्दाश्त से बाहर होता है। फिर हम लोगों को लगता है कि ठीक है, आप प्रोग्राम दीजिए ना दीजिए, वो तो आपकी अपनी, आप अगर प्रोग्राम करवा रहे हैं तो आपका पर्टिकुलर, आपका अपना ही फैसला है कि मैंने इसको परफॉर्म के लिए बुलाना है, इसको नहीं बुलाना है। फिर आप चार चीजें उसमें घुसेड़ देना कि ये जो है इस पॉलिटिक्स के मतलब पॉलिटिक्स से बिलोंग करते हैं, इनका जो ऐसा है, इनका और ऐसा है। आप कलाकार को देखिए, उस समय कलाकार को देखना ही बेहतर रहता है। ये चीज मुझे बहुत अखरती है। जी, ओवर टू यू मैम। आपने बहुत बड़ी बात आपने शेयर किया, बहुत बहुत गहराई से शेयर किया है, क्योंकि एक सच्चाई है, हर क्षेत्र में रहती है ये, इट्स इन एवरी फील्ड। किसके साथ बैठना उठना है, कौन से पॉलिटिशियन यस। कनेक्टेड है, कौन से हाई प्रोफाइल पर्सन के साथ आप जुड़े हुए हैं, ऑल ऑफ दिस। इस कला को आगे ले जाने में, या आप और कुछ निवेदन करना चाहेंगे भारत सरकार से? और थोड़ी सी दे नीड टू गिव अ लिटिल पुश मोर एंड एनकरेज ऑल द पीपल who are interested in Kathak dance form. देखिए, डेफिनेटली गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो कर ही रही है। अगर जिसको मतलब नॉलेज है, संगीत नाटक एकेडमी, आईसीसीआर के इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं। अगर आप वर्किंग नहीं है, जो वर्किंग है वो नहीं कर सकते हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, वो अपना वहां से प्रोजेक्ट ले सकते हैं। स्कॉलरशिप्स हैं, फेलोशिप भी है लोगों के लिए, और जो 50 से अब हैं उनके लिए उन्होंने पेंशन स्कीम भी रखी हुई है। पर हाँ, ये मुझे ऐसा लगता है कि लैक ऑफ जो कम्युनिकेशन है, वो थोड़ा सा ऐसा है। क्योंकि देखो, इंटरनेट जो है, आज का जमाना है इंटरनेट का, जो युवा पीढ़ी है वो डेफिनेटली उसको कहीं ना कहीं वो ग्रेसिव कर लेती है कि आज ये स्कॉलरशिप निकली, आज ये फलानी जगह ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, वहां पे ऑनलाइन अप्लाई कर लो, ये उधर ये हो रहा है, इधर ये हो रहा है, ये प्रोजेक्ट निकला हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो लोग करते रहते हैं। और यही वजह है कि जो वास्तव में जो कलाकार है,
वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है इन सब चीजों से। मेरा गवर्नमेंट से ये मानना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में संगीत नाटक एकेडमी है, उनकी जो ब्रांचेस हैं वो हर एक स्टेट्स में है। भाषा एवं संस्कृति विभाग जो आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट है, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हर एक स्टेट में है। उस स्टेट में वो पत्राचार से या कुछ मौखिक रूप से या लोकल जो न्यूज़पेपर्स होते हैं या कोई और साधन है, उन तरीकों से उसको एडवर्टाइजमेंट करें, तो असल में जो कलाकार है उन तक वो चीज पहुंच सकती है। अदरवाइज वो दिल्ली में रह के, दिल्ली के लोग जो वहां पे आउट ऑफ स्टेट के, हर एक जगह का कोटा उन्होंने फिक्स किया है। हिमाचल का अलग है, पंजाब का है, गुजरात का अलग है, सबका उड़ीसा का अलग अलग है। पर वो कोटा फिर वहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि वो छोटी मोटी स्टेट्स में जा ही नहीं पाता। तो फिर वो कहते हैं कि इस कोटे को भी यहीं पे खत्म कर दो, ये जितने जो मिल रहा है उसको दे दो। वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो एडवर्टाइजमेंट वाला पार्ट है वो प्रॉपरली होना चाहिए, और पत्राचार या जैसे भी आपको लगता है डिपार्टमेंटली या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, वो प्रॉपरली होना चाहिए। Politics. So we request the government of India to come forward and to help to promote the dance of India, the various dances of India in the right way, maybe give importance to all the kinds of classical dances, make it very, very active in every state, every little village and town of India. We'd love people to take more interest in dance. That is Indian classical dance and of course other forms of dance. As long as you feel that you are contributing to your own physical health, mental health and emotional well-being, if you're okay, the world is okay around you, right? सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आके आप शेयर कीजिए हमारे मंच पर। आपने आपके साथ बात करके एक जेन्युइन फीलिंग, जेन्युइन कनेक्ट, you are sharing all genuinely with me. That was really nice. Thank you so much for your time. Looking forward to many more interactions. बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, sir. Thank Thank you. So dear friends, with this we sum up now the session. We'd like you to share this video with the right kind of people. You never know who may be interested in dance. So just share this video such that those people interested in classical dance, for example, Kathak, could connect with our celebrity guest. We'll share the details of our celebrity guest, where he will make you a perfect dancer if you love to be one, right? With regard to Kathak. With this, we'd like to sign off now from the International Fab Talks. If you like what we are doing, connecting with the right kind of guests, inviting them here to share their journey, to share their professional expertise with us, stay connected. Like, comment, subscribe, and share to the International Fab Talk. Stay blessed.